So today we will be discussing the question number 21 and follows question, because yesterday till we have discussed till question number 20. So let's start with this question and first have a read at question, what question is saying. So question number 21, what it says: metabolism include process of catabolism and anabolism. Select the anabolic process. It's a very simple question and it's a level of like +1 +2 biology, not more than that. So आपको ये पता ही है, there are two process, anabolism and catabolism. When you talk about metabolism, it comprises of anabolism and catabolism. And when you talk about anabolism is basically what? Anabolism is basically the synthesis of larger molecule from some smaller molecules, right? Or the muscle mass synthesis, or protein, fats, and nucleic acid synthesis. So anabolism basically pay to the process of growth and storage, right? On the other hand, when you talk about catabolism is concerned with the breakdown, means breakdown of larger molecule to the smaller one. ठीक है? For example, like carbohydrate, lipids and protein are breakdown. Example, carbohydrate, proteins, lipid, when they break down. So these are the two processes in anabolism and catabolism categories. So you have to choose what he has asked. He has asked about choosing the anabolic process. So if you have to choose anabolic process, I will go for growth as well as storage, right? In respiration also there is catabolism. The food is being break down in order to liberate the energy, right? Excretion I will not categorize in both of them. That's a physiological process. So I will be here taking growth and storage. So the correct answer here will be growth and storage, A as well as B. Is it clear to everyone? It's a very simple question. Is it clear to everyone? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, मुझे आज 40+ तक आपको पहुंचाना है हर हाल में, राइट? क्लियर है? जल्दी फटाफट चलो रिस्पॉन्स करते रहना, तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा फटाफट से. Now let's move to the next question, which is question number 22. Question number 22. इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोविड के ऊपर है क्वेश्चन. कहता है क्वेश्चन नंबर 22 में SARS-CoV-2 हाइपोथेसिस टू बी जम्प्ड फ्रॉम अ बैट टू पेंगोलिन. मतलब ऐसा बोला गया है कि जो इसका ओरिजिन है वो बैट से हुआ, देन इट जम्प टू द पेंगोलिन, होस्ट शिफ्ट हुआ बिफोर इन्फेक्टिंग ह्यूमंस. Which of one or more of the following methods can be effectively used for testing of this hypothesis? तो इसको आप कैसे टेस्ट करोगे? इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम जो जीनोम है बैट का और पेंगोलिन का, उसको कंपेयर करेंगे. ठीक है? कि जो इसका SARS-CoV-2 का आपका जीनोम है वो हम कंपेयर करेंगे, तो कंपैरेटिव जीनोमिक्स हो गई वो एक तरह की. और साथ में हम क्या करेंगे? हम उसका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे, मतलब उसकी एंसेस्ट्री ट्रेस करेंगे. फाइलोजेनेटिक्स क्या होता है? इन विच वी ट्रेस द एंसेस्टर. फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ाया ना आपको, तान्या मैम ने पढ़ाया है और रिचा मैम ने पढ़ाया फाइलोजेनेटिक ट्री. ठीक है? कि कौन किससे बिलोंग करता है. सो वी विल कंस्ट्रक्ट सच काइंड ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री. ठीक है? तो ये दो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहे हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको पता ही है, जैसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है, क्रिमिनोलॉजी में भी करते हैं. ठीक है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसमें VNTRS रिपीट बेसिस को हम चेक करते हैं. तो यहाँ पे कंपैरेटिव जीनोटिक, फाइलोजेनेटिक्स. ट्रांसजेनेसिस क्या होता है? जब आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, बेसिकली उसी का नाम होता है ट्रांसजेनेटिक्स. ठीक है? उसी का नाम होता है ट्रांसजेनेटिक्स या ट्रांसजेनेसिस. ठीक है? तो उसी का नाम होता है. तो ये ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव जीनोमिक्स और फाइलोजेनेटिक्स का यूज करके यू कैन ट्रेस फ्रॉम विच दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ फटाफट. क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है? चलो रिस्पॉन्स करते रहेंगे. तो यहाँ पे A and C इज द करेक्ट आंसर. फाइलोजेनेटिक्स एंड एज वेल एज कंपैरेटिव जीनोमिक्स, ये दो यूज करके हम इसको ट्रेस डाउन कर सकते हैं. अब अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल आ रहा है और 3 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इनमें नो नेगेटिव मार्किंग का भी फंडा है. ये ध्यान रखिएगा कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप, वो सॉल्व जरूर करने हैं, क्योंकि ये देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन. कल भी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 23. कल भी हमने किया था, सेम ही क्वेश्चन है. बस मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा. कहता है a sample of height of tree follow a normal distribution. पहली लाइन में हिंट दे दिया. In this sample 68% of the height measurement are expected to fall in the interval of mean plus minus standard dash many standard deviation. तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है गाइस. इसमें क्या करेंगे?
अब आपको मैंने कल भी बताया था, आज दोबारा से बता दे रहा हूँ, जब ये कह ही दिया है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका कर्व ऐसा होगा जी, और कर्व ऐसा होगा तो फिर आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटर पे इसके, कैसे करके, ऐसे करके, ये ड्रॉ हो गई लाइन, ठीक है। और फिर आप देख लेंगे इसको, मान लो कि ये मेरा ऐसे वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो, हाँ, जो आपका ये वाला रीजन है, जो बिल्कुल ठीक बोल रही है लड़की रितंबरा, जो 1 सिग्मा वाला रीजन है, ये शेडेड रीजन जो है, ठीक है, उसमें क्या है 68%। तो इसको जब रीजन को आप लेंगे, जब ये रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, तो ये बीच में म्यू हो गया, तो ये म्यू प्लस माइनस सिग्मा होता है ना, तो यहाँ पे 1 सिग्मा प्लस का और ये 1 सिग्मा माइनस का, तो ये जो 68% इसको कवर करता है। तो वापस जाते हैं क्वेश्चन पे अपने, वो क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है भाई कि 68% को ये कवर करता है तो कैसा होना चाहिए, ठीक है। 68% को अगर ये कवर करता है, क्वेश्चन में अपने आप ही हिंट दे दिया आपको, ध्यान से देखो, क्वेश्चन अपने आप से हिंटेड है। अब ये आपको पता चल गया, यहाँ पे देखो अपने आप से क्वेश्चन हिंट दे रहा है, क्या कह रहा है, a sample of height of tree follow a normal distribution. In this sample 68% of the height measurement are expected to fall in the interval of mean plus minus. तो क्या था, म्यू प्लस माइनस सिग्मा, 1 सिग्मा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 सिग्मा, तो आंसर आ गया 1, क्योंकि सिग्मा तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, तो आंसर आ गया आपका 1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया जी आपका 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर यहीं पे ये बोल देता कि 95% है, 95% है तो कितना होता, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, तो आंसर 2 हो जाता। अगर कहता 97% है तो क्या हो जाता, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, तो 3 हो जाता आंसर। क्लियर है? जल्दी बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? इजी क्वेश्चन है ये, तो इजी क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है ऐसा जो हम एनकाउंटर कर रहे हैं इसके बेसिस पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ फटाफट। आज इनकी रेल बनानी है क्वेश्चंस की सारों की, ठीक है, आज इनकी फटाफट रेल बनानी है। कोई 5-7 ही क्वेश्चन छोड़ना चाह रहा हूं मैं, वो हम कल डिस्कस कर देंगे आपको, तो 10 तारीख तक फ्री। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और ये मल्टीपल टाइम्स ऐसा क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर में भी है। कहता है अ बर्ड स्पीशीज हैज एनुअल सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी। एनुअल सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी जो है उसको बर्ड स्पीशीज की दी हुई है 0.30, तो इसको लिख लेते हैं एनुअल सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, एएसपी 0.30 मैंने लिख लिया यहाँ पे, ज्यादा बार बार शिफ्ट करने से फिर वापस आने में दिक्कत होती है। तो एनुअल सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी मैंने लिख लिया। दूसरी लाइन में क्या कहता है, दूसरी लाइन में क्या कहता है, फटाफट से देखो, while the sampling of the population of this species the probability that any individual is captured in the given year is 0.4, कि अगर कोई कैप्चर की प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.40, तो यहाँ पे लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्चर, पीसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्चर 0.40। अब आगे आपसे क्या कहता है गाइस कि ये बताओ, आगे अगली लाइन में जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। कहता है अ बर्ड इज कैप्चर्ड, मतलब बर्ड कैप्चर भी होना चाहिए, टैग करा और रिलीज करा इन द ईयर 1, पहले साल उसको हमने ऐसे किया। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रिकैप्चर इन द ईयर 2। अब एक बात मुझे बताओ, वो ईयर 2 में तभी रिकैप्चर होगा ना जब वो सरवाइव करेगा, तो वो ईयर 2 में तभी कैप्चर होगा व्हेन इट विल सरवाइव। ये तो बात आपको पता चलनी चाहिए, कोई जिंदा रहेगा तभी तो दूसरे साल में पकड़ा जाएगा। तो ईयर 2 में क्या होगा, जब वो सरवाइव करेगा तभी तो वो कैप्चर्ड होगा ना, कभी तो वो कैप्चर्ड होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्चर, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका, जो द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रिकैप्चर्ड इन द ईयर 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकैप्चरिंग, रिकैप्चरिंग इज इक्वल टू एनुअल सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्चर, क्योंकि वो जब कैप्चर तो दोबारा तभी होगा ना भाई जब वो क्या करेगा, जब वो सरवाइव करेगा। तो सिंपल सा आंसर आ गया इसका, सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो उठा के 0.30, यहाँ पे लिखते हैं खाली सी जगह में 0.30 इंटू 0.40, तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे समझने वाली चीज थी बस, आपका आंसर आ जाएगा कितना जी, 0.12 इज द करेक्ट आंसर, 0.12 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ फटाफट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 24? जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स करोगे उतना ही मैं आगे मूव कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो भाई, क्लियर है? आप सारे के सारे फटाफट रिस्पॉन्स करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी आप काफी सीखोगे इसमें और आपको गेन भी होगा बहुत अच्छा इससे। ठीक है, चलो आगे।
इसको हम कर दे रहे हैं, अब अगले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाँ, न्यूमेरिकल में नेगेटिव नहीं है, श्योरली अटेम्प्ट है। जहां पे भी नेगेटिव नहीं है वो श्योर अटेम्प्ट करे क्वेश्चन, यही ट्रिक है। जहां पे भी नेगेटिव नहीं है वहां पे श्योरली 100% उसको अटेम्प्ट करे, और जहां पे भी आपको 80-20 का चांस लग रहा है वही नेगेटिव में अटेम्प्ट करेगी। 80% आप श्योर है कम से कम, ठीक है। तो आराम से आप इजीली यू विल गेट 60+ मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है और सिंपल जेनेटिक्स है। इसमें खूब क्वेश्चन आपको कराए हैं ऐसे, प्रियंका चौधरी मैडम ने भी और क्या कहते हैं रिचा मैम ने भी। सेक्स रेशो एट बर्थ इज बायस टुवर्ड फीमेल, कल हम पढ़ रहे थे ना, है ना। मोंगूज पॉपुलेशन, जो मोंगूज है उसमें क्या है, सेक्स रेशो जो है किस तरफ बायस है, फीमेल, मतलब फीमेल को ज्यादा फेवर करते हैं इन कंपैरिजन टू मेल की। अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ डॉटर इज 0.7, मतलब डॉटर क्या है, फीमेल है, लड़की तो फीमेल ही होगी ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल 0.7 है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल कितनी है, 0.7 है, ठीक है। आगे क्या कहता है, in the population and if sex determination of each offspring is an independent event, कि independently offspring का sex determine होता है, then the probability that a female with a litter of 4, मतलब 4 offspring जो होंगे, 4 जो बच्चे होंगे, उनमें से probability that a female with a litter of 4 offspring have at least one son, कि कम से कम एक मेल हो। तो इसको हम बोर्ड पे ले जाते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोर्ड पे ले जाते हैं। ये देखो, इसमें देखो मोंगूज है, मोंगूज 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 पॉपुलेशन है, फटाफट देख लो इसको। और इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल कितनी है, 0.7, ठीक है। और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल प्लस फीमेल इज 1, ये तो आपने पढ़ा है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी। तो मेल की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0.3। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही सबको। तो यहाँ पे मेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0.3, ठीक है। ये क्लियर है, इतना जल्दी बताओ फटाफट। अरे इतना क्लियर है कि नहीं है, इतना क्लियर है कि नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे भाई, सो गए लग रहा है। अब देखो क्वेश्चन में पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन मेल, एटलीस्ट वन मेल, एटलीस्ट वन मेल, ठीक है। तो इसको निकालने का ये भी तरीका है, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल फीमेल, ऑल फीमेल, ये कम से कम एक मेल हो। तो कम से कम क्या होगा, एक मेल होगा तो 3 फीमेल होगी, एक मेल होगा तो 3 फीमेल होगी, ठीक है। कम से कम एक हो, एक मेल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों मेल भी हो सकते हैं। तो इसमें मैं ये करके निकाल सकता हूं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द फीमेल, ठीक है। तो ऑल फीमेल प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो उसमें से, तो ये हो जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन मेल आ जाएगी, 1 2 3 कोई भी हो। तो ये मैंने क्या किया, 1 माइनस फीमेल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.7, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 बार ऑल फीमेल की, चारों के चारों फीमेल है। तो आप करके देखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 0.2401। तो यहां से आपको करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा जी 0.76। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 मैं आगे चल रहा हूँ फटाफट से, जल्दी जल्दी, आज थोड़ा स्पीड में करेंगे काम, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, 11th-12th की जेनेटिक्स का क्वेश्चन। सबको क्लियर है, जितने भी लोग हैं क्लास में, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ। चलो इसको हम अब रब कर रहे हैं, हम अब चल रहे हैं वापस अपने क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे, जस्ट अ मिनट।